Shall we start, student? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, beta. Okay. See, we have completed with the chapter number 2, that was market demand and supply. Now we have to start with the demand function. Okay. So this is your new chapter, chapter number 3, demand function, and this topic is also not so difficult because you have already studied this demand function in your 12th standard. So what exactly we have to find here in this chapter? We have to study the meaning of demand, then the law of demand, then determinants of demand, demand function, price, income, and the substitutions effect, and then the nature of demand curve under different market. Okay, these all points we have to study. See, now we'll start with the meaning of demand. Okay, everybody know what is demand here. Demand, when we say about the demand, so it will require the three factors. The first one is the desire. We should have desire to purchase that commodity. Second one, we should have ability to pay for the commodity. And third one will be willingness to buy, or we can say willingness to pay purchase. commodity. Okay, these three things are required when we talk about the demand. So as I'm saying, the desire is the prime factor which we need to have when we are demanding the commodity. So desire मतलब क्या कि हमेशा like we are having desire for many things कि मुझे बड़ा बंगलो खरीदना है, या मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी है, मुझे एक एरोप्लेन खरीदना है खुद का. That way we can have many demand for us. Okay, तो वैसे तो अपना बहुत सारा डिजायर रहेगा, बट लेकिन उसको डिमांड क्यों नहीं कहते हम लोग? बिकॉज दिस इज ओनली डिजायर. To get the demand, we should have the ability to pay for the commodity also. Okay, तो हमारे पास उतना एबिलिटी भी होना चाहिए, और जब हमारे पास एबिलिटी भी आता है, still we need to have the willingness to buy that commodity. What does that mean here? I've already given you this example. अगर तुम्हें 20 लाख की कार खरीदनी है और तुम्हारे पास बराबर 20 लाख रुपया अवेलेबल है, it means what here? You have the desire to purchase that commodity, you have the ability also to pay for that commodity, but still you will not going to have the willingness to buy that commodity. May I know why it is so? तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होता रहेगा कि पैसा भी है और तुम्हें वो कार खरीदनी भी है, उतना पैसा चाहिए, वो भी तुम्हारे पास है, बस स्टिल आप लोग उसको विलिंगली नहीं खरीद रहे हो? ऐसा विलिंग नहीं हो खरीदने के लिए, ऐसा क्यों होगा? क्यों ऐसा सिचुएशन आएगा? कैन एनीवन टेल मी? चलो मैं तुम लोगों के एग्जांपल देती हूँ. तुम्हारे पास टोटल तुम्हारा सेविंग है 20 लाख रुपए का, और तुम्हें कार भी 20 लाख की खरीदनी है, लेकिन फिर भी तुम वो कार को नहीं खरीद रहे हो. क्या रीजन रहेगा? ऐसे क्यों करता है ह्यूमन बीइंग? यस, सी, ऐसा क्यों करता रहेगा ह्यूमन बीइंग? बिकॉज 20 लाख का ही आपके पास सेविंग है, और वो अगर आप पूरा का पूरा 20 लाख एक कार के ऊपर डालोगे तो बाद में आपके पास 1 रुपया नहीं बचेगा. ओके, एंड कार, जैसे कि कोई कोई लोग रहते हैं कार ही खरीदनी है ना, तो ठीक है हम लोग कोई और कार खरीद लेते हैं कि जो हमारा नीड्स है उसको सेटिस्फाई करेंगी. Why we need to have the 20 lakh rupee वाली कार only? Because if I'll going to spend full my 20 lakh rupees का saving, then I will not going to have any amount left to me for an emergency purpose. Am I right or not? So हम लोग ऐसा सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? Yes. क्या लगता है आप लोगों को? Yes, ma'am. है ना? सोचेंगे. मैम यस, वैसे सोचेंगे. सोचना ही चाहिए हम लोगों को. पूरा का पूरा पैसा हम लोग ऐसे नहीं डाल सकते जस्ट एक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. हाँ, अगर ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, लाइक इन द सेंस वी कैन से हॉस्पिटल है. Medicine. हाँ, यस, Medicine. Hospital. नहीं सब नहीं, मैंने सुना ही नहीं दिया मुझे एक्चुअली. सी लाइक व्हाट वी कैन से कि जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन करना है, और उसके लिए जो पैसा उन्होंने कहा है वो आपका पूरा सेविंग वाला पैसा का अमाउंट है, तो उस टाइम पे आप लोग उसके लिए आगे पीछे नहीं देखोगे. यू विल बी विलिंग टू पे फॉर दैट, बिकॉज आपको चाहिए कि वो जिसके लिए वो ऑपरेट आप जिसके लिए पैसा दे रहे हैं आप, तो वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो आप उसके लिए उतना पैसा खर्च करने के लिए रेडी रहोगे. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि डिमांड अगर हम लोग कहते हैं, so only to have the desire and only to have the ability to pay for the commodity, that will not going to consider as the perfect demand for the commodity. To have the demand for the commodity, we need to have the willingness also. तुम्हें लगना चाहिए कि जो पैसा तुम लोग खर्च कर रहे हो वो सही कर रहे हो,
सही जगह पे तुम लोग पैसा खर्च कर रहे हो, एंड वॉट एवर आउटपुट यू विल गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट, दैट विल बी satisfactory one to you also. Okay, वो तुम्हें अगर फीलिंग आना आएगा, then only we can say yes, there is a perfect demand here. You have a desire, you have the ability also, and you are willing to spend that much money on that commodity also. When these three situations are coming together, at that time we are saying there is a demand for the commodity. Is this clear to you, student? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, नाउ विल स्टार्ट विद द Yes, लॉ ऑफ ma'am. डिमांड. ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ, लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना. बताओ मुझे, लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया है? हु इंट्रोड्यूसेस द लॉ ऑफ डिमांड? Alfred Marshall. Alfred Marshall. Alfred Yes, Marshall. very good, very good. Law of demand is introduced by Dr. Alfred Marshall. Alfred. ठीक है, उन्होंने उसको Dr. Alfred इंट्रोड्यूस किया. Marshall. तो जब अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने क्या कहा कि डिमांड के लिए क्या चीज अफेक्ट करती है ज्यादा? बोलो. Price. 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 हाँ, प्राइस अफेक्ट करती है. Price. ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या वहां पे लॉ ऑफ डिमांड में बताया है कि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है कि जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करेगा. लेकिन मुझे ये बताओ, आप लोगों को ऐसा लगता नहीं अल्फ्रेड मार्शल ने बाकी चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या हमेशा प्राइस यूज्ड टू बी ओनली वन फैक्टर दैट विल गोइंग टू अफेक्ट डिमांड? बाकी फैक्टर नहीं रहते हैं क्या स्टूडेंट? रहते हैं या नहीं रहते? Yes, ma'am. रहते हैं. है ना? Yes, ma'am. There Right are there. some other Ma'am. factor. Yes, प्राइस के अलावा there are some other factor which affect the demand. लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने वो सबको कहा है कि वो सब ऐसे ही रहेंगे, वो सब में कुछ चेंजेस नहीं होगा. Only the price will going to change here. ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? If any of the economics or any of the scientists, when they are trying to explain a certain concept, तो वो उसको क्लैरिटी में रखने के लिए they are always assuming that the remaining factor which will going to affect that particular concept, that we have to assume it will going to remain the constant one only. ठीक है, तो इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया? To show the relation, to show the effectiveness of price on the demand, he has only explained us about the relationship between price and demand. उसने बाकी factors को वहां पे assume किया, the other factors will going to remain the constant here. Okay, so therefore whenever we are writing the statement of law of demand, we always write that according to Alfred Marshall, other things being constant, as the price of commodity rises, the demand will, what will happen, student? Yes, the demand will fall, Demand and when the falls. price of commodity fall, the demand will rises. High. Demand rise. Yes, very good. Okay, तो ये है तुम्हारा statement of law of demand. So whenever you are writing the statement, आप लोगों को other things being equal, ये word लिखना बहुत जरूरी है. Okay, so you can write other things being equal, otherwise you can write other things being constant, or you can write ceteris paribus. Okay, आप ऐसे ही 3 वर्ड्स में कोई भी एक वर्ड को यूज करके देन आप लोग उसका एक्सप्रेशन स्टार्ट करोगे. If the price of commodity rise, the demand fall, and vice versa. Is that clear to you, student? How to write the statement of law of demand? Yes, ma'am. ma'am. Okay, देखो, Yes, अगर ये ma'am. क्वेश्चन आता है, see this law of demand question in your exam, it will going to come for 7 or 8 marks only. 7 या 8 मार्क के लिए आने वाला है. So what will be the way of writing the answer? First you need to write the introduction. Second you need to write the meaning of demand. Third point you need to write the statement of law of demand. तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है अभी तक आप लोगों को? Yes. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now after the statement of law of demand ना, आप लोग ये टेक्स्ट बुक में क्या किया है उन्होंने? टेक्स्ट बुक में they have directly shown you the diagram. You don't need to go with the diagram. ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट लिखने के बाद इमीडिएटली डायग्राम नहीं लिखोगे. आप लोग क्या करोगे? स्टेटमेंट के बाद में यू विल गोइंग टू राइट द अजम्पशन. ठीक है, क्योंकि अजम्पशन में क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज व्हाइल राइटिंग द स्टेटमेंट वी हैव ऑलरेडी रिटन other things being constant, so that we have to explain what is the meaning of other thing being constant. ऐसे कौन से other चीजें हैं, ऐसे कौन से other factors है कि that Alfred Marshall has assumed it will going to remain constant है. ठीक है, तो ये आपका आता है एक्चुअली assumption में. So पहला क्या assumption है?
अभी और एक बात है, जैसे आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में कैसा आता है, ओनली दे विल गोइंग टू आस्क यू एक्सप्लेन द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये 4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अगर वो 4 मार्क के लिए आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, हर एक अजम्पशन को, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो डिटेल में। हियर यू डोंट नीड टू डू दैट, व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू राइट द अजम्पशन इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। एक एक लाइन का अजम्पशन देना है। आप लोगों को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों करके नहीं, जस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने क्या अज्यूम किया था वो आप लोगों को लिखना है। तो उसने क्या अज्यूम किया था, पहला था देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। तो आप लोग ये नहीं लिख, अभी आपको बस वही लाइन लिखना है, सिंगल लाइन यू नीड टू राइट हियर, द फर्स्ट assumption here, there is no change in consumers income. You don't need to explain when the consumers income rises the demand will going to increase, when it will fall the demand will fall, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, just write there there is no change in consumers income. Are you getting me student, कैसे लिखना है करके समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट क्या है? Yes, ma'am. ओके बेटा, सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, देर इज नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड। अभी रिलेटेड गुड्स के बारे में हम लोग बात करें, सो रिलेटेड गुड्स मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय द रिलेटेड गुड, कि वो लोग बता रहे कि रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस में चेंज नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, यस, एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो Yes, हम लोग ma'am. यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी और वी कैन से कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटी। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? ये सेकंड पॉइंट Yes. समझा? Yes, Okay. ma'am. Ma'am. सब्स्टिट्यूट गुड में चेंज नहीं होगा, उसका जो प्राइस, जैसे टी एंड कॉफी है, आप लोग सब्स्टिट्यूट कमोडिटी आते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल यू आर गिविंग मी टी एंड कॉफी ओनली। सो टी एंड कॉफी में जैसे अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का प्राइस क्या मतलब कॉफी का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है करके। सो दिस वे इट विल गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड ऑफ टी, राइट? सो देयर वी हैव टू अज्यूम देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। लेकिन एग्जाम में अजम्पशन लिखते वक्त आप लोगों को कुछ भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर 7 and 8 marks you need to spend only, I can say, 5 to 6 minutes to write that answer. You cannot give more time for writing the answer. इसके लिए जितना फास्ट आप लोग आंसर्स को कंप्लीट कर पाओगे बाय कंप्लीटिंग ऑल द पॉइंट्स, वही आपका फोकस होना चाहिए। Okay, now the third point is there is no change in taste. There is no change in taste, it means what here? Here we can say that there is no change in the preferences regarding the fashion, regarding the habits, or we can say the other factors which will going to affect the customers preferences, वो सब लोग हम लोग assume करेंगे there will not be any kind of a change in the taste here, मतलब whatever is the current trend is happening it will be going to be continue, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला है। देन अगेन जो भी तुम लोगों को किसी भी चीज का हैबिट है, so that habit will not going to change here, that we are assuming as there is no change in taste. Now the next point here, no uncertainty about the future. Yes, uncertainty about the future, how it will going to affect the demand, can anyone tell me here? अगर मुझे फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी लगता है तो मेरा प्रेजेंट डिमांड अफेक्ट होगा, क्या एग्जांपल दे पाओगे मुझे इसके लिए? यस स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं किसी भी कमोडिटी के, तो फिर प्रेजेंटली आप लोग क्या करोगे वो कमोडिटी के लिए? ज्यादा डिमांड करेंगे ना, वेरी गुड Purchase वेरी गुड, Other ओके। demand. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे देयर विल नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, मुझे फ्यूचर के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता है कि ये कमोडिटी के साथ क्या होने वाला है, उसका डिमांड कितना कम होने वाला है, कितना उसका प्राइस कितना कम होने वाला है, कितना ज्यादा होने वाला है, दैट आई डोंट नो। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन। यस, यू ऑल नो कि अगर पॉपुलेशन की हम लोग बात करते हैं, सो एज द पॉपुलेशन विल गोइंग टू इंक्रीज देयर डिमांड विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि एज ऑफ पॉपुलेशन, एज ऑफ पॉपुलेशन की वो पर्टिकुलर कंट्री में हाउ मेनी पीपल आर देयर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ चाइल्ड एज पॉपुलेशन, they how many of them are coming into the working population, how many of them are coming into the old age population. Oh, yeah. बराबर,
ठीक है. So accordingly, like old age population, like whichever population will be more there, तो उसके according उनके related जो commodity रहता है उनका demand ज्यादा रहता है. So therefore we are assuming there will not be any kind of a change in the composition of population also. ये क्लियर है ना स्टूडेंट? साइज ऑफ पॉपुलेशन आपको पता है, कंपोजिशन का मीनिंग समझा या नहीं आपको? यस. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, Now the ma'am. next point here, no change in advertisement. Yes, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा एडवर्टाइजमेंट में. जो पहले से तुम लोगों का एडवर्टाइजमेंट था वही आपके कमोडिटी के लिए, वही सेम स्ट्रेटेजी आप लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं. दैट वे वी आर अज्यूमिंग, बिकॉज यू ऑल नो कि अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट बहुत इफेक्टिवली करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, so that will going to affect the demand of the commodity also. उसके एडवर्टाइजमेंट की वजह से कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ता है या कम हो जाता है. So therefore here we are assuming there is no change in advertisement. Now the next one here, no change in government policy. Okay, now अभी आप लोग मुझे बताओ, गवर्नमेंट पॉलिसी के वजह से डिमांड अफेक्ट होगा. हाउ कैन इट बी? कैसे होगा अफेक्ट? क्या लगता है आप लोगों को? गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे अफेक्ट कर सकती है डिमांड को? बोलो. What do you all say, student? पॉलिसी निकल आई मैम, जीएसटी वगैरह. यस कसाब, नहीं समझा बेटा. मैम टैक्सेस वगैरह लगता है तो उससे कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड. ज्यादा अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो कमोडिटी की प्राइस भी बढ़ जाती है. दूसरा बात क्या होता है कि अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो कमोडिटी को बनाने वाला है तो उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा. तो वो क्या करेगा? कमोडिटी Yes, कम ma'am. प्रोड्यूस करेगा. एम आई राइट और नॉट? ठीक है यस मैम. है ना? वो कमोडिटी कम Yes, अगर प्रोड्यूस करेगा तो Yes, सप्लाई ma'am. कम होगा. सप्लाई कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ेगा. सो डिमांड बढ़ेगा तो वहां पे प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे उसको, और भी ज्यादा प्राइसेस पे कमोडिटी जाएगा. So this way it will going to affect the demand for the commodity, and therefore we are assuming there will not be any kind of a change in the government policy. Now the last one here, no change in natural factor. Okay, natural factor मतलब आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे? What example you can give me? climatic. Which one? मैम अर्थक्वेक और ये जो भी Yes, very क्लाइमेट good. की It वजह means you're से talking जो भी about the होता है. natural calamity. मतलब अगर नेचुरल कैलामिटीज हो जाता है तो उससे प्रोडक्शन का नुकसान हो सकता है. तो जैसे नुकसान हो जाएगा तो वहां पे शॉर्टेजेस ऑफ सप्लाई रहेगा. अगर वहां पे शॉर्टेजेस ऑफ सप्लाई रहेगा डिमांड के अकॉर्डिंग, देन ऑब्वियसली द प्राइसेस विल गोइंग टू राइज. लेकिन भले ही प्राइसेस वहां पे राइज हो गए बट स्टिल देयर विल बी मोर डिमांड बिकॉज पीपल रिक्वायर दैट कमोडिटी, isn't it? So this way all this point has been assumed it will going to remain constant in your law of demand. Is this clear to you student? All this assumption? Okay. यस तो अभी तक देखो आप लोगों को क्या क्या करना था. आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना था, उसके बाद में मीनिंग ऑफ डिमांड, देन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड देन फोर्थ वन आप लोगों ने लिखा अजम्पशन. अजम्पशन के बाद में आप अभी क्या करोगे? डायग्राम निकालो. ठीक है. लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है उधर उन्होंने डायरेक्टली डायग्राम निकाला हुआ है, हमें वैसा नहीं चाहिए. लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों को शेड्यूल भी निकालना है एंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को डायग्राम निकालना है. ओके. तो शेड्यूल में अभी आप लोग मुझे बताओ, डिमांड शेड्यूल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है अपना ये सेकेंड चैप्टर में. तो अभी मुझे बताओ स्टूडेंट, व्हेन आई हैव टू ड्रॉ द डिमांड शेड्यूल, अगर मुझे वहां पे डिमांड शेड्यूल दिखाना है तो मैं टेबल बनाऊंगी. और टेबल में कितने कॉलम रहेंगे? 3 कॉलम रहेंगे. 3 या 2 कॉलम, चलो 2 कॉलम हम लोग अज्यूम करते हैं. टेबल में 2 कॉलम रहेंगे. सो वो 2 कॉलम में क्या क्या, वो कॉलम का क्या हेडिंग रहेगा? कोई बता पाएगा मुझे? प्राइस क्वांटिटी डिमांड. वेरी गुड. Quantity demand. हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट. आप लोग क्या लिखोगे? एक कॉलम में प्राइस लिखोगे और एक कॉलम में क्वांटिटी डिमांड लिखोगे. तो प्राइस में ब्रैकेट में लिखना है कि पर यूनिट. ओके. तो प्राइस जैसे आप लोगों ने सबको स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 से, तो पहले प्राइस कम है तो अभी तो आप लोग क्वांटिटी डिमांड वहां पे थोड़ा ज्यादा दिखाओगे. तो सिंपल वे के लिए आप लोग क्या करोगे? व्हेन द प्राइस इज 1 एट दैट टाइम क्वांटिटी डिमांड इज 50. उसके बाद में आप जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा तो आप 50 को कम दिखाओगे. सो 50 40 30 20 10. आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना कैसे दिखाओगे Yes, ma'am. करके? Yes. हाँ, आप लोग निकाल पाओगे ना एग्जाम में डिमांड शेड्यूल? यस. Yes, ma'am. Yes. और उसके अकॉर्डिंग Yes, डायग्राम ma'am. भी निकाल पाओगे? यस मैम. Yes. हाँ. Yes, ma'am.
आपको क्या करना है, शेड्यूल निकालना है और डायग्राम निकालना है। शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम। ठीक है, तो आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन देना है दैट विल बी ओनली फॉर द डायग्राम। सो डायग्राम के लिए आप लोग क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? ऑन द y axis we are measuring the price of the commodity, then on the x axis we are measuring the quantity of commodity. ठीक है, then there you will going to say कि as per the schedule, as per the above diagram, the demand curve dd is the demand curve which is sloping downward. Okay, आप लोग को वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है कि आप लोग वहाँ पे बताओगे ना कि डिमांड को डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, सो देयर यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। सो क्या बताओगे आप लोग वहाँ पे? as the demand curve is sloping downward, it indicates there is an inverse relationship between price of the commodity and the quantity demand of the commodity, because as the price will going to fall, the demand will going to increase and vice versa. That's it. इतना ही लिखना है आप लोगों को। लिख पाओगे उतना एक्सप्लेनेशन अपने मन से? कोई बाहर Yes, नहीं ma'am. जाएगा। ओके, Yes, ma'am. हाँ, नो नीड टू बाहर, अपने मन से लिखो। आपको बस एक्सप्लेनेशन में क्या बताना है कि वाई एक्सेस पे क्या है, एक्स एक्सेस पे क्या है, कौन सा डिमांड कब है, और वो जो डिमांड कब है वो डाउनवर्ड क्यों स्लोप होता है, उसका एक रीजन बताना है आपको। दैट्स इट। तो 4-5 लाइन में। मैम लॉ ऑफ डिमांड के लिए 12th का टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हैं क्या? क्या जोया, फिर से एक बार बोलो बेटा। लॉ ऑफ डिमांड के लिए 12th का टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हैं बिकॉज हाँ, ऑलमोस्ट कर सेम सकते ही है प्रिफर, सब चलेगा, इसमें। बिकॉज देखो ना ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। देखो 12th स्टैंडर्ड का यस भी लॉ मैम। ऑफ डिमांड Yes, आल्फ्रेड ma'am. मार्शल ने ही लिखा था, और तुम्हारा फर्स्ट ईयर का लॉ ऑफ डिमांड भी आल्फ्रेड मार्शल ने ही लिखा है, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने इसके लिए आपको कहा कि 12th स्टैंडर्ड का अगर आपके पास कोई रहेगा ना टेक्स्ट बुक वगैरह, तो उसको मत फेंको, बिकॉज ये जो तुम्हारा अभी का जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 70% सेम है तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। कुछ नया है तो वो मैं आपको वैसे बताती जाऊंगी कि दिस इज क्वाइट न्यू टॉपिक टू यू, लेकिन ये सब हो चुका है करके। यू इफ यू आर प्रिफर टू यूज योर 12th स्टैंडर्ड नोट्स, यस यू आर टोटली अलाउड टू यूज दैट, कोई वहां पे आपके मार्क्स कम नहीं होने वाले हैं। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो ये Yes, हो गया ma'am. लॉ ऑफ डिमांड के, क्या हो गया था, डायग्राम शेड्यूल हो गया एंड डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखो अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा, कोई बता पाएगा मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या, कैसे लिखोगे आंसर? पहले क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन, सेकेंड, मीनिंग, थर्ड, Meaning. स्टेटमेंट, हाँ थर्ड विल बी स्टेटमेंट, फोर्थ, assumption, yes very good, fourth will be assumption, fifth, schedule, yes, and sixth, diagram diagram and and its explanation. explanation. ठीक है, वेरी गुड। अभी लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को लिखना है, दिस इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या केसेस यहाँ पे आप लिखोगे, क्या एग्जाम्पल इसके अंदर लिखोगे। तो एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि देखो लॉ ऑफ डिमांड तुम्हें ये बताता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम ज्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग उसका डिमांड भी कम ज्यादा होता रहता है। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड इज सेइंग हियर। लेकिन कोई कोई कमोडिटी ऐसी रहती है कि जिनका अगर प्राइस कम होता है तो उनका डिमांड भी कम हो जाता है, और जिनका अगर प्राइस ज्यादा रहता है तो उनका डिमांड भी ज्यादा रहता है। सो दे आर कॉल्ड एज अ एक्सेप्शनल केसेस। हम लोग जनरली बोलते हैं ना नॉर्मली कि मतलब कोई बोलेगा नहीं मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम लोग लाइक 4-5 फ्रेंड्स आर लाइक यू आर टॉकिंग टुगेदर, और 4-5 लोग में से 3-4 लोग बोल रहे कि हाँ मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं करके, मतलब बिल्कुल सहन नहीं होता है, और उसमें से 5वां बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो चल जाता है कितना भी तीखा हो जाए करके, तो वहां पे उस कोई एक बोलेगा तू तो एक्सेप्शनल है करके। ओके, तो सबसे अलग है। सो दैट वे तो आप लोगों के एक्सेप्शनल अगर ये वर्ड आएगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो कमोडिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो पहला एक उन्होंने एग्जांपल दिया दैट इज गिवन गुड। फॉर द गिवन गुड law of demand concept is not applicable. See what they are trying to say here, what exactly the given good is. These are the special type of inferior goods which are purchased more at a higher price
and lets at a lower price. मतलब गिफ्ट एंड गुड ऐसे कमोडिटी रहते हैं कि जो जिनका प्राइस मतलब वो इंफीरियर कमोडिटी है. इंफीरियर मतलब क्या स्टूडेंट? हाई क्वालिटी और द लो क्वालिटी. व्हाट डू ऑल से? बता पाएगा कोई मुझे? इंफीरियर कमोडिटी मतलब लो Low है या हाई quality. क्वालिटी? Low quality. High quality. यस. High quality. Quality, ma'am. नहीं, इंफीरियर का मीनिंग ये होता है कि कच्चा माल, High मतलब ये लो क्वालिटी का है. ओके. इंफीरियर का मीनिंग है कि लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी है. लेकिन लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी का भी जब प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे. अब ये बोलेंगे मैम ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग तो नहीं खरीदेंगे उसको. तो आई गिव यू वन सिचुएशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बताओ कि आपके घर में ऐसा होता है या नहीं होता है. सी आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास फैमिली एंड द पुअर फैमिली. Here I am not taking this example for the given good and the inferior good for the rich family. Okay, this we can assume it for the middle class and the poor family. So मैं एक पुअर फैमिली का एग्जांपल बताती हूँ आपको. पुअर फैमिली जो मंथली जो खर्चा करती है चावल के ऊपर, राइस खरीदना है, सो दैट पुअर फैमिली यूज टू परचेज 20 रुपीज केजी वाला राइस. ठीक है, उनके लिए 20 रुपए किलो वाला जो राइस रहेगा वो लोग खरीदते हैं. और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो एवरी मंथ पे 25 रुपीज केजी वाला जो राइस है वो खरीदते हैं. ओके, ये हम लोगों ने देखा. अभी मैं आपको सिचुएशन देती हूँ कि अचानक से क्या हो जाता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं. किसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं? राइस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. राइस में जो लो क्वालिटी था, जो Rice. पहले 20 रुपए में अवेलेबल था, नाउ इट इज अवेलेबल एट 25 रुपीज केजी. ठीक है, जो 20 रुपए वाला राइस था जो पुअर पीपल खरीदते थे, अभी वही राइस 25 रुपीज केजी का हो चुका है और उससे लोएस्ट क्वालिटी और नहीं है. ओके. एंड जो मिडिल क्लास वाले फैमिली खरीदते थे 25 रुपीज वाला जो राइस था, वो अभी 30 रुपीज का हो चुका है. तो वो मिडिल क्लास वालों का है. तो अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी आप लोग मुझे ये बताओ, मिडिल क्लास फैमिली जो रहेगा वो क्या करेगा? जो 20 रुपीज वाला राइस है जो 25 रुपीज पे आ चुका है वो खरीदेगा, या फिर जो 25 रुपीज का 30 हो चुका है वो खरीदेगा? क्या लगता है आप लोगों को? मैम 20 वाला 25 में खरीदेगा. विच वन दे विल गोइंग टू परचेज? 20 रुपए वाला का प्राइस बढ़ गया वो खरीदेंगे या 25 रुपए वाला प्राइस बढ़ गया वो खरीदेंगे? 20 वाला प्राइस बढ़ गया वो खरीदेगा. यस, वेरी 20 गुड. वाला. 20 वाला प्राइस. ओके, मतलब वो लोग क्या करेंगे, जो लो क्वालिटी था सबसे, तो उसका प्राइस बढ़ गया तो उन्होंने उसको खरीद लिया है. क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज अगर वो लोग 25 रुपीज वाला जो चावल रहेगा जो अभी 30 का हो चुका है, अगर वो लोग उसको उसको खरीदेंगे तो उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा. एम आई राइट स्टूडेंट? है कि नहीं? यस मैम. तो इसके लिए व्हाट Yes, दे विल ma'am. गोइंग टू प्रेफर हियर, Ma'am. कि जो लोएस्ट क्वालिटी है और उसका प्राइस बढ़ चुका है, दे विल गोइंग टू प्रेफर दैट वन because they don't want to somewhat affect their cost of monthly cost. उनको वो affect नहीं करना है. So this is what the gift and goods. और दूसरी बात क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो 20 रुपए का चावल खरीदते थे, now they don't have any option, they have to purchase that commodity at a higher price also. So higher price वाला commodity वो 25 रुपए वाला भी राइस खरीद रहे हैं. इवन मिडिल क्लास फैमिली भी जो था, जो 20 रुपए वाला, जो पहले 25 वाला अच्छा क्वालिटी खरीदता था, अभी वो लोग भी थोड़ा लोएस्ट क्वालिटी खरीद रहे हैं. तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो गिफ्ट एंड गुड्स है उसका डिमांड बढ़ जाता है एज द प्राइसेस इंक्रीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, स्नॉब वैल्यू. स्नॉब वैल्यू मतलब क्या होता है स्टूडेंट? की जो रिच कंज्यूमर्स रहते हैं ये उनके बारे में ये शायद हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा. हमारे लिए मतलब मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बस स्टिल लेट मी सी कि ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं. स्नॉब वैल्यू मतलब क्या रहता है कि जो रिच पीपल रहते हैं उनको दिखाना रहता है कि देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई एंड दे आर वेरी रिच, एंड वो सब रिचनेस दिखाने के लिए दे आर परचेसिंग द कमोडिटी विच इज अवेलेबल एट अ हायर प्राइस. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन द डायमंड. ओके, सो अगर डायमंड का प्राइस बढ़ता है so at that time they will going to purchase more diamond. लेकिन अगर उसी डायमंड का प्राइस कम हो जाएगा so they will not going to demand it. अभी तुम लोगों के लिए एग्जांपल देना है, so I can say जैसे सब लोगों के लिए प्रिफरेबल मोबाइल फोन जो रहता है दैट विल बी द आईफोन. लेकिन सबको पता है कि आईफोन का प्राइस बहुत ज्यादा रहता है, तो इट विल बी नॉट अफोर्डेबल. लेकिन फिर भी कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब कोई इवन आप लोग में से भी कोई ऐसा रहेगा नहीं कि नहीं, बाकी मतलब आईफोन मतलब रिचनेस दिखाता है तो मुझे भी वो रिचनेस दिखाना है.
तो आप लोग बहुत जिद करोगे घर पे, और भले आपके घर वाले बोलेंगे कि नहीं वो 10,000 रुपए वाला मोबाइल है वो खरीद ले, लेकिन आप लोग नहीं मानोगे, और आप लोग घर वालों के पीछे लगते कि नहीं मुझे वो आईफोन ही खरीदना है. Why? Because if you're going to have this commodity which is available at a very higher cost, so it will going to show अरे ये लड़का तो बहुत रिच है करके. Isn't it? आप लोग वैसे हो, वैसे करते हो आप लोग? Yes or no? नो नो मैम. नहीं ना, आप लोग बिल्कुल वैसा नहीं करते ना, आप एकदम संभाल के पैसा खर्च करते हो, बराबर? Yes, ma'am. Yes, पता है ma'am. मुझे, तुम सब लोग बहुत Yes. अच्छे हो. मैं जब आऊंगी ना तभी तुम लोग सब लोगों का मोबाइल देखने वाली हूँ, कौन कौन ऐसा बोला और किनके पास आईफोन है. ओके, नाउ द Okay, नेक्स्ट वन ma'am. हियर, प्राइस एक्सपेक्टेशन. यस, प्राइस एक्सपेक्टेशन मतलब क्या रहता है कि जैसे कि फ्यूचर में तुम लोगों को लगता है कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी, जैसे गोल्ड प्राइस. देखो गोल्ड का अभी का रेट के हिसाब से जितना मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर, ये मैं बराबर बोल रही हूँ नहीं, बट मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि इट इज अवेलेबल लाइक 47,000 का अभी का रेट, क्योंकि 47 या 48,000 पे एक तोला मिलेगा, ये अभी का रेट है. ये हमारे लिए भी बहुत कॉस्टली हो गया, 47,000 रहने दो या 48,000 रहने दो, स्टिल इट इज वेरी कॉस्टली टू मी. लेकिन अगर ऐसा मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके इसका प्राइस ऑलमोस्ट 60 को क्रॉस करने वाला है, 60,000 को क्रॉस करने वाला है, तो अभी के लिए भी 48,000 मेरे लिए महंगा ही है. तो फिर मैं क्या करूंगी, अभी उसके लिए डिमांड करूंगी या नहीं करूंगी ज्यादा? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं करेंगे. अभी मैं क्या करूंगी, फ्यूचर में उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो अभी मैं वो खरीद के रखूंगी या नहीं खरीद के रखूंगी? करेंगे मैम. खरीद के रखोगे ना? करेंगे मैम. हाँ, यस. इसका मीनिंग क्या होता है क्योंकि कि फ्यूचर भले में उस जाना कमोडिटी जाएगा. का प्राइस ज्यादा है, बट स्टिल आई एम परचेसिंग दैट कमोडिटी बिकॉज आई फील कि फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस एक्सपेक्टेशन. नाउ द नेक्स्ट वन हियर, इमरजेंसी. इमरजेंसी मतलब जैसे कि वॉर है, कभी वॉर होता है, कभी नेचुरल कैलामिटीज आ जाते हैं, मेजर इलनेस होता है, मतलब वी कैन टेक द एग्जांपल लाइक पैंडेमिक. ठीक है, ये कोविड का हम लोग एग्जांपल लेते हैं. कोविड के टाइम पे देखो स्टूडेंट, जब इनिशियली ये वैक्सीन आया था, तो तभी ऐसे डिक्लेयर किया गया था कि जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनको कोविड होगा भी नहीं, अगर उनको होगा भी तो वो ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं लेके आएगा. एम आई राइट स्टूडेंट? ऐसा ही कहा, ऐसे ही कहते हैं करके. Isn't it? तो तभी क्या था, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल लेना है, वैक्सीन मुझे लेना ही चाहिए करके इनिशियली लोगों ने क्या किया, लिटरली फर्स्ट डोज लेने के लिए उन्होंने 1,000 रुपया खर्चा किया. बराबर है? यस. Yes. लेकिन अगर आप लोग अभी Yes, ma'am. देखोगे, nowadays these vaccines are available everywhere and it is available at very cheap cost, or somewhere it is available at a free of cost. Free of. ओके, Yes, ma'am. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इमरजेंसी टाइम, मतलब जब उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा कोविड स्प्रेड हुआ था, उस टाइम पे लिटरली लोगों ने हाई प्राइसेस पे भी कमोडिटी को खरीदा. Isn't it? So this is what the way the emergency will going to affect the price and the demand. उसके लिए एक्सेप्शन रहेगा. Now the fashion, ये सबको पता है कि जो फैशन में है वो करंट ट्रेंडिंग में है, और वो ट्रेंडिंग में है इसके लिए उसके लिए ज्यादा प्राइस भी रहेगा, but still people will going to purchase that commodity. Okay, though it is at the higher prices also. तो ये एक्सेप्शनल केसेस हो जाएगा. इसके अलावा मुझे और एक्सेप्शनल केसेस बताओ स्टूडेंट आप लोग. जैसे कि हैबिट्स के बारे में अगर मुझे बताना है कि किसी किसी को किसी चीजों का बहुत हैबिट रहता है, तो वो क्या एग्जांपल दोगे आप लोग मुझे इसके लिए, एक्सेप्शनल केसेस के लिए? यस, मतलब किसी को किसी चीज का इतना हैबिट हो जाता है कि भले वो हाई प्राइसेस पे भी रहेगा, स्टिल दे विल गोइंग टू डिमांड दैट. व्हाट विल बी, व्हाट एग्जांपल यू कैन गिव मी हियर? यस मंगला. मेडिसिन. ओके, वी कैन टेक जैसे कि स्मोकर्स के लिए वी कैन टेक द एग्जांपल, देन अगेन अल्कोहल, देन Ma'am, अगेन like दोस. tea. हाँ, यस. देन अगेन दोज हु आर ड्रग एडिक्टेड, तो उनके लिए हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं कि भले उसका प्राइसेस बढ़ जाता है, बट स्टिल दे आर डिमांडिंग दैट कमोडिटी. लॉकडाउन में कितना लोग अल्कोहल ही यस राहुल, फिर से एक बार बेटा. ओके. यस मैम. Okay, same. So these are all the exceptional point. Then we have to start with the determinants of demand. Student, determinants of demand, ये सब तुम्हारा जो हम लोगों ने assumption में देखा है वही same point है. Okay, so I am not Ma'am. explaining this point again कि price
इज अ डिटर्मिनर. इनकम की वजह से डिमांड बढ़ता है, कम होता है. दिस प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की वजह से डिमांड कम होता है, ज्यादा होता है. सो दिस ऑल पॉइंट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू रिपीट इट वंस अगेन. डिमांड फंक्शन, ये तो यहाँ पे उन्होंने टोटली सारे पॉइंट्स को लेके किया हुआ है डिमांड फंक्शन के बारे में. तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी बट इन द नेक्स्ट लेक्चर. और इसके बारे में भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. बट बिफोर मैम दैट किसको कुछ लेट डाउट है? मी गेट योर अटेंडेंस. कासिफ, यू वांट टू से समथिंग? कसा यस मैम. tell me बेटा. एक्सेप्शन भी वन लाइन सिंगल लाइन में आंसर में लिखना होगा. जैसे अजम्पशन आपने बोले एक ही लाइन में उसका आंसर देना है अजम्पशंस के बारे में. मुझे एक्चुअली है ना, यहाँ पे मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे आवाज बहुत कम आ रहा है आपका. मतलब आप मुझे एग्जाम के बारे में बहुत पूछ रहे हो कि कैसे आंसर लिखा मिस जाएगा. अजम्पशन, हाँ अजम्पशन में आपने ये आंसर में बोले ना कि खाली हेडिंग डाल के सिंगल हाँ लाइन में जस्ट लिखना है हेडिंग उसके बारे में. लिखना है. कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन देने में की भी जरूरत नहीं. ठीक है, वैसे करो. ओके. ओके ओके. हु विल सेंड मी अटेंडेंस? हमेशा मुझे कौन भेजता है तुम्हारे क्लास में से, बी डिवीजन में से, सॉरी ए डिवीजन में से? जो भेज रहा है वही अगर भेजेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा. हु इज टू सेंड मी? जल्दी, लेस देन 1 मिनट दिख रहा है इधर यहाँ पे. ओके कसफ, कैन यू सेंड मी? यस मैम. यस ठीक मैम. है, आप भेजो मुझे फिर. ठीक है, वैसे करेंगे. Okay, students, so less than 1 minute is there. Our lecture will going to get over. Okay, so you all are able to understand all this point? Yes or no? यस मैम. Yes. Okay, बेटा, okay. अभी दिवाली की छुट्टी एंजॉय करना है तुम लोगों को 30 तारीख के बाद में. ओके, तब तक ऑनलाइन ही रहोगे. हाउ मेनी डेज मैम? हाउ मेनी डेज? It will be till 14th November. Till 14th. ओके मैम. Okay, students. Shall I end the meeting? यस Yes, ma'am. Okay, Bye, bye, ma'am. students. Yes. Bye, ma'am.